your topic. Your topic first was going on the French Revolution and the idea of French Revolution and the idea of nation. Idea of nation. I have discussed three questions. Question number one was that when and where for the first time nationalism was clearly expressed. Question number two was write the steps taken by French revolutionaries to create sense of collective belonging among French people. Question number three was write the mission and destiny declared by the French revolutionaries. I have completed question number one, question number two, question number three. You already know the answers. Question number one was, the answer was in first paragraph, page number 5. Question number two, the answer was in second paragraph of page 5. And question number 3, the answer was in paragraph 3rd and 4th of page number 5. Your next question is question number 4. Write about the Civil Code of 1804. Or write the features of Civil Code of 1804. Write about the Civil Code of 1804. Your answer is in page number 6. Page number 6. You have to write answer from page number 6. The answer is that the Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth. It established equality before the law and secured the right to property. This code was exported to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, Italy. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, freed peasants from serfdom and manorial dues,
In the towns too, guild restrictions were removed, transport and communication systems were improved. ये जो पेज नंबर 6 में इसका आंसर है, कोई भी 5 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। और ऐसे जिस समय हम इस टॉपिक को हम बता रहे थे उस समय पूरा का पूरा आंसर हम बोर्ड पे लिख दिए थे। अगर वो आपके पास अवेलेबल होगा तो पिछला वीडियो देखिएगा, तो पिछले वीडियो में या फिर उससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें पूरा का पूरा आंसर इसका हम लिख दिए थे। आप चाहें तो आप उससे भी लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो इट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804। In this you have to write about that the civil code of 1804, it was also known as Napoleonic Code. Second point, it did away with all privileges based on birth. Next point, it established equality before law and secured the right to property. Next point, Napoleon simplified administrative divisions. Next, it abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. Next, in the towns too, guild restrictions were removed. Last point, transport and communication systems were improved. There are more than 5 points. You can write 5 points from page number 6. Next is your question number 4. Question number 5. जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कैन बी गिवन इन डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ local population. Write the reaction of local population to the French rule in the areas conquered by Napoleon, or the French armies were conquered as the French armies were welcomed as harbinger of liberty, but soon the initial enthusiasm turned to hostility. Explain. इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है। एक जो क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। और ये जो सेम क्वेश्चन है ये दूसरे ढंग से दिया जा सकता है, और द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बट सून द इनिशियल इंथुजियाज्म टर्न टू हॉस्टिलिटी। तो इसमें जो है आंसर होगा पेज नंबर 7 and your para 2. In the areas conquered,
the reaction of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, the French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of administrative changes. इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें यही चीज़ बताया गया है कि जो लोकल पॉपुलेशन था, लोकल पॉपुलेशन जो कि जीता गया था फ्रेंच लोगों के द्वारा, नेपोलियन के द्वारा जो एरियाज यूरोप में कॉन्कर किया गया था, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, फ्रेंच रूल के प्रति उनका रिएक्शन कैसा था। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से आता है, द फ्रेंच आर्मीज वेर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी बट सून द इनिशियल इंथुजियाज्म टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी। एक्सप्लेन। शुरुआत में तो जो फ्रेंच आर्मीज थी उनको यूरोप में अलग अलग जगहों पे वेलकम किया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद जो लोग उनको वेलकम कर रहे थे वही लोग उनके अगेंस्ट हो गए, वही लोग उनके विरोधी हो गए। तो ये कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर उसका एक ही होगा। तो इसमें हम बताए थे कि सिविल कोड ऑफ 1804 जो था, जिसको कि नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता था, इसके कारण सारे फ्रांस में या सारे यूरोप में जो भी एरियाज कॉन्कर किया गया था नेपोलियन के द्वारा, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ गई। पूरा जो लॉज था वो यूनिफॉर्म सभी जगहों के लिए एक समान हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया, इक्वलिटी लाया गया लॉ में। इसके अलावा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको, जो प्रिविलेजेस था फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट का, उसको ख़त्म किया गया। तो इन सब चीज़ से जो जनता थी वहाँ की, जो यूरोप की, वो काफ़ी खुश हुई। और वो लोग जहाँ भी नेपोलियन गए कॉन्कर करने के लिए, तो वहाँ पे लोगों को वेलकम किया गया। कैसा, तो एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता जो लेकर आने, जो लोगों को स्वतंत्रता देता है, जो लोगों को अधिकार देता है, तो उस तरह से लोगों को वेलकम किया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो नेपोलियन को या फ्रेंच आर्मी को वेलकम कर रहे थे, वही लोग बाद में उसके विरोधी बन गए। क्यों? तो इसका हम, अगर पिछला जो वीडियो आप लोग देखिएगा तो एक तरह से बोर्ड पे पूरा इसका आंसर हम लिख दिए हैं। तो चाहें तो आप उस आंसर को भी लिख सकते हैं, या फिर पेज नंबर 7 में पैरा 2, तो दूसरा कारण था, एक था इंक्रीज टैक्सेशन, देयर वाज हैवी इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन, और नेपोलियन increased the taxation on common people. Napoleon also gave rights to the people, but there was imposition of heavy taxes on them. There was improvement in transport and communication, but in place of that, the common people were forced to pay heavy taxes to नेपोलियन। इम्प्रूवमेंट किया, लोगों को अधिकार दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो टैक्सेस था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो टैक्सेस वेर इम्पोज्ड हैवली ऑन द कॉमन। आफ्टर दैट देयर वाज फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मी। जो फ्रेंच आर्मी थी उसमें जबरदस्ती पकड़ के बहाल किया जाता था, क्योंकि नेपोलियन का एक ही मोटिव था, उसका जो एक ही उद्देश्य था कि जो रूल हो होली हो, पूरे यूरोप के ऊपर रूल करना, एक ही उसका एम था, एक ही उसका ऑब्जेक्टिव था। तो इसको पूरा करने के लिए ही नीड अ लॉट ऑफ सोल्जर्स टू फाइट फॉर नेपोलियन। नेपोलियन के फेवर में लड़ने के लिए सोल्जर्स चाहिए थे। तो वो सोल्जर्स कहाँ से आता?
तो इसलिए फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन होता था, जहाँ भी वो जीतता था वहाँ पे लार्ज स्केल पे लोगों को फोर्स करता था, ज़बरदस्ती करके आर्मी में उनकी बहाली की जाती थी। इन सब चीज़ों से लगने लगा, जो कॉमन पीपल थे, वहाँ के लोग थे, उनको लगने लगा कि नेपोलियन जितना लिबर्टी हमको दिया है, जितना स्वतंत्रता हमको दिया है, उससे ज़्यादा हम लोगों से छीन रहा है। जो वो लिबर्टी दिया, जो स्वतंत्रता लोगों को दिया, जो अधिकार दिया, वो हल्का हो गया, आउटवे, मतलब वो हल्का हो गया किसके मुकाबले में? टैक्सेस के मुकाबले में, जो वो लोगों के ऊपर इम्पोज किया, टैक्सेस, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, सेंसरशिप, उसके तुलना में जो वो अधिकार दिया वो कम हो गया। इसलिए लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग को भाई लॉस है, और वो लोग उसके अगेंस्ट में हॉस्टाइल हो गए और उसका विरोध करना शुरू कर दिया। सिविल कोड में भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी भी वही स्थिति है। क्या क्या प्रोविजंस था सिविल कोड ऑफ 1804 का? तो इट वाज आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता था। इट डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के अनुसार जो भी प्रिविलेजेस, जो भी छूट लोगों को मिला हुआ था, उसको वो खत्म कर दिया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट वाज मेड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव फ्रॉम टाउन्स, हर टाउन्स में जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, अपना उनका एक एसोसिएशन होता था, अपना उनका एक गिल्ड होता था, जिसको एसोसिएशन बोला जाता है। उस गिल्ड का पूरे जो ट्रेडर्स था उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता था, क्योंकि सभी के सभी जो ट्रेडर्स हुए, मान लीजिए कोई कपड़ा के व्यापारी है, ट्रेडर्स ऑफ क्लॉथ्स, तो वो जो ट्रेडर्स ऑफ क्लॉथ्स थे, उनका एक अपना गिल्ड होता था। द क्लॉथ ट्रेडर्स हैव देयर ओन गिल्ड, अपना एक उनका एसोसिएशन होता था, और वो लोग सभी जो होते थे उसके मेंबर होते थे। किसी भी प्रोडक्ट का, क्लॉथ का क्या प्राइस होगा, इट वाज टोटली फिक्स्ड बाय द गिल्ड एंड द प्राइस वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गिल्ड। कपड़ा बुनने वाले जो आर्टिजन्स हैं, वो लोग भी उससे कनेक्टेड होते थे, गिल्ड से कनेक्टेड होते थे, गिल्ड्स के थ्रू में ही उनको वर्क मिलता था, उनको ऑर्डर प्लेस किया जाता था। और वो जो गिल्ड होता था, बाहरी किसी भी ट्रेडर को उस टाउन में ट्रेड नहीं करने देता, मतलब पूरा का पूरा जो टाउन का ट्रेड है, शहर का ट्रेड है, उसके ऊपर उसी गिल्ड का इन्फ्लुएंस होता था, डोमिनेंस होता था। और तो ऐसे स्थिति में, इस स्थिति में क्या होता था कि कोई दूसरा ट्रेडर्स इंटर ही नहीं कर सकता था उस टाउन में, मतलब ट्रेडिंग जो स्फेयर था उसमें। और तो ये इट वाज अ बिग हिंड्रेंस इन ट्रेड और इन फ्री ट्रेड, इट वाज अ ऑब्स्टेकल इन फ्री ट्रेड। जो फ्री ट्रेड था, जो मुक्त व्यापार था, उसमें ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था। और ट्रेड से ज़्यादा पैसा मिलता था नेपोलियन को, एक तो लैंड रेवेन्यू था, दूसरा ट्रेड, ही गॉट लॉट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड। तो जितना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसके पास टैक्सेस भी आएंगे। और ट्रेड गिल्ड्स के कारण टाउन्स में नहीं बढ़ पा रहा था, बाहरी ट्रेडर आके ट्रेड उसमें नहीं कर पा रहे थे। जब बाहरी ट्रेडर जब ट्रेड आकर नहीं कर पाएंगे तो जो ट्रेड है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगा कि टैक्सेस कम मिलेगा नेपोलियन को। इसलिए जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस था, इट वाज अ बिग ऑब्स्टेकल इन फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था, और नेपोलियन नहीं चाहता था कि किसी तरह का ट्रेड में ऑब्स्टेकल हो, क्योंकि अगर ट्रेड में ऑब्स्टेकल होगा तो उसके पास में टैक्सेस कम आएंगे। इसलिए गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड अंडर नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक जो कोड था उसके अंडर में, मतलब उसके थ्रू में जो नेपोलियनिक कोड था या सिविल कोड ऑफ 1804 था, उसके थ्रू में जहाँ पे भी रूल हो रहा था, मतलब नेपोलियनिक जो इन द एरियाज कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन, वहाँ सिविल कोड ऑफ 1804 था।
या नेपोलियनिक कोड था, तो उन सब क्षेत्रों से गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया. सो these were some important features of सिविल कोड ऑफ 1804. इसी के साथ जो आपका टॉपिक फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया. अगली बार में सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.